Friends, today we will start chapter 3 of English 1, that is Being Brave at Night by Edgar Guest. Okay, Being Brave at Night by Edgar Guest. It is the poem in which poet is fully describe about the children's imagination, that how they imagine in the night when they are free from every work. While sleeping, they just dream about many things. Their imaginations are shown in this poem by poet very well. बहुत अच्छे से पोएट ने चिल्ड्रन के इमेजिनेशन को इस पोएम में पुट किया है और उन्होंने बताया है कि रात में बहादुर बनना है, कैसे बच्चे रात में बहादुर बनते हैं। यहाँ पर इस पोएम में हम पढ़ेंगे। ओके, वी विल रीड आउट इन दिस पोएम। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द पोएम। ओके, द अदर नाइट अबाउट 2 o'clock or maybe it was 3, an elephant with shining tusks came chasing after me. His trunk was waving in the air and spouting jets of steam, and he was out to eat me up, but still I didn't scream or let him see that I was scared. A better thought I had. I just escaped from where I was and crawled in bed with Dad. यहाँ पर हम लोगों ने हम लोग ने पोएम को पढ़ा और यहाँ पर हम लोग पहले इसके पोएम्स को समझेंगे कि यह राइमिंग स्कीम, इसके बारे में पोएम का जानेंगे। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम? मीन्स जो लाइंस जो होते हैं, जो लास्ट लाइन वो राइम्स करते हैं, मतलब टैली करते हैं, वो साउंड एक सेम साउंड होता है। जैसे 3 मी, स्टीम, स्क्रीम, हैड, डैड। Here you can see that these words are rhyming. Okay, so first of all we will give the name. It is giving the alphabetical order number, so we can find out the rhyme scheme. It is 3 me, means same sound it is here, so it will be A. Steam, scream, B. Okay, it is different from 3 me, so it is given B. यहाँ पर A दिया गया है, राइम स्कीम 3 मी है तो A है, और यहाँ पर स्टीम, स्क्रीम, तो यहाँ पर इससे डिफरेंट है इसका राइमिंग स्कीम। दैट्स व्हाई वी हैव गिवन इट बी, स्टीम, स्क्रीम। हैड, डैड, दिस इज आल्सो डिफरेंट, सो इट इज गिवन सी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर नंबर सी। ओके, हैड, डैड, so it will be, this is the rhyming scheme of the poem. A, B and C. Okay, this is the rhyming scheme of the poem. We must know about the poem, that what is the rhyming scheme of the poem. It is the main, you can say the main thing of the poem. और ये poem हम लोग जब भी पढ़ते थे, for the pleasure, it has the rhyming scheme. No giants, ghosts or elephant have dared to come in there, cause if they did, he would beat them up and chase them to their lair. They just hang around the children's rooms and snap and snarl and bite and laugh if they can make them yell for help with all their might. But I don't ever yell out loud. I am not that sort of lad. I slip from out the covers and I crawl in bed with Dad. Here the same, we will first find out the rhyme scheme. There it is again here. Their lair. Okay, it will be D, layer, their layer. Bite, might, then it will be E. Okay, lad, dad, it is the same here, C, so it will be C. Okay, because the same rhyme scheme is here, lad, dad. So this will be the, in the second stanza rhyme scheme is D, E and C. We have came to know about the rhyme scheme of the poem. Now we will understood the poem, that what the poem is telling about. ये poem क्या बता रहा है हम लोग ये जानेंगे। The other night about 2 o'clock or may it was 3, an elephant with shining tusks came chasing after me. The other night मतलब एक रात है, जो एक रात में वो लोग मतलब कि 2 और 3 बज रहे थे लगभग, और यहाँ पर एक एलिफेंट विथ शाइनिंग टस्क, जो टस्क मीन्स लॉन्ग टीथ, और दैट इज ऑफ द एलिफेंट। ओके, केम चेजिंग आफ्टर मी। अब वो एलिफेंट विद शाइनिंग टस्क, मतलब वो पीछा कर रहा है किसका? यहाँ पर ये मी, यहाँ पर चाइल्ड जो है पोएम में वो बता रहा है कि वो 2 और 3 o'clock हुआ है और वो चाइल्ड के पीछे पीछे वो एलिफेंट आ रहा है। ओके, now his trunk was waving in the air and spouting jets of steam,
and he was out to eat me up, but still I didn't scream. Here it is telling about that the elephant, his trunk was waving in the air. मतलब वो ट्रंक हवा में लहराते हुए आगे बढ़ रहा था. Spotting jets of steam, मतलब अपने मुंह से जो उसके ट्रंक से जो भाप निकल रही थी, sending out with great force, जो भाप जो है वो पर फोर्स के साथ निकल रहा था steam. And he was out to eat me up, और जैसा लगभग वो खाने को था उससे बच्चे को. But still I didn't scream. But वो scream नहीं किया, वो चिल्लाया नहीं डर से. Let him see that I was scared, a better thought I had. Let him see. वो इसलिए नहीं चिल्लाया कि वो यह सोच रहा था कि चलो उसको भी पता चले कि वो डर नहीं रहा है, तो वो खुद ही डर कर भाग जाएगा. A better thought I had. उसने ये सोचा. I just escaped from where I was and crawled in bed with that. अब वो वहां से बच कर निकल गया जहां वो सोया हुआ था और अपने डैड के बेड. No giants, ghosts or elephants have dared to come in there, cause if they did, he would beat them up and chase them to their lair. Here no giants, ghosts or elephants have dared to come in there. यहाँ पर कहाँ नहीं आने की हिम्मत कर सकता है. giants, राक्षस, ghost और elephants जो नहीं आ सकते हैं, हिम्मत कर सकते हैं आने का. Because cause is here in the short, here it is written about because. Okay, because का यहाँ short form है cause. If they did, he would beat them up and chase them to their lair. और अगर वो ऐसा करते भी हैं तो वो उसको चेस करके उसको बहुत मारेगा और वो एक ऐसे प्लेस पे छुप जाएगा जहाँ लोगों का पहुंचना मुश्किल है. ओके. And chased with it. They just hang around the children's room and snap and snarl and bite and laugh if they can make them yell for help with all their might. ये लोग मतलब जो जायंट्स है, गोस्ट है, एलिफेंट्स है, ये सब ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स जो है ना बच्चों के ही रूम्स के आसपास हैंग आउट करते हैं, रहते हैं कि उसी प्लेस पे ज्यादा दिखते हैं क्योंकि बच्चे जानते हैं. यहाँ पर इस लाइन में हमें समझ में आता है कि ये चिल्ड्रंस रूम्स के मतलब चिल्ड्रन की ही पोयम है. बच्चा यहाँ पर जो बोल रहा है पोयम वो एक चाइल्ड है. स्नैप एंड स्नाल एंड बाइट मतलब वो लोग उसको हमेशा चाहते हैं, काटने की कोशिश करते हैं और स्नाल करते हैं, नॉइज निकालते हैं, साउंड निकालते हैं. एंड लाफ इफ दे कैन मेक देम येल और हंसते हैं कि वो बच्चे चिल्लाएं रात में. येल मीन्स शाउट. टू हेल्प विथ ऑल देयर माइट, फॉर हेल्प के लिए शाउट करे. इन लोगों को जायंट्स को, गोस्ट को या एलिफेंट्स और मॉन्स्टर्स जो है ना वो लोग रात में बच्चे को सताने आते हैं कि बच्चे रात में चिल्लाएं. और ये चीज यहाँ पर पता चलती है इस पोएम में, स्टैंजा में, कि यहाँ पर जो पोएम है में जो चाइल्ड है वो बता रहा है कि वो जो जायंट्स है, गोस्ट है, एलिफेंट्स और मॉन्स्टर्स है रात में उन्हें डराने आते हैं और चिल्ड्रन के रूम के ही आसपास रहते हैं. And laugh but I don't ever yell out loud. And I don't ever yell out loud. I'm not that sort of lad. मैं उस तरह का बॉय नहीं हूँ. मैं वो कभी नहीं, ये इस पोएम में जो बॉय है वो कभी भी रात में नहीं चिल्लाता है कि वो जान कर रहा है कि वो हमें डराने आ रहा है, फिर भी वो शॉट नहीं कर रहा है. I sleep from out of the covers and I crawl in bed with that. वो अपने कवर से जहाँ वो सो रहा होता है वहां से वो चुपचाप निकलकर अपने डैड के बेड के पास आ जाता है. वो कोई शॉटिंग नहीं करता है या उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई डराने आ रहा है, फिर भी वो चुपचाप अपने पापा के बेड के पास चला जाता है जब वो समझता है कि वो उसके लिए सेफ प्लेस है. मॉन्स्टर्स, गोस्ट, एलिफेंट्स कोई भी उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है. ये ऐसे पोएम तो हमने बताया था, ये 2 ही स्टैंजास है, नॉट द होल पोएम. इट इज एन एक्सट्रैक्ट. ओके, इट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम ऑफ एडगर गेस्ट. ओके, ये पोएम का 2 ही स्टैंजा लिया गया है. ये 4 स्टैंजास हैं उस पोएम में. यहाँ पर सिर्फ 2 स्टैंजास लिए गए हैं और इसी में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे चाइल्ड अपने आप को बचाता है मॉन्स्टर्स से, एलिफेंट्स के ड्रीम से और चुपचाप अपने फादर के बेड की तरफ शिफ्ट हो जाता है. वो जानता है कि ये उसके लिए सेफ प्लेस है.